you explain me? Hello. What we have completed in last lectures? सर लास्ट में वो एरा वाला एक्सपेरिमेंट रखवा लिया था पेन पे था ना, याद नहीं। लास्ट में क्या किया था? नहीं, लैब की बात नहीं करता हूँ बेटा, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट द लेक्चर। लेक्चर में खबर नहीं सर। सर हाँ जी बोलो। लास्ट लेक्चर में हमने टॉपिक 4 खत्म कर दिया था। ओके, आई थिंक आपने फेज बोला था डायग्राम। कि यस यस यस, आपने बोला था कि अगले लेक्चर में आयन कार्बन डायग्राम चलाएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। मतलब you are connecting with the flow of our curriculum as well as the topic, right? Very good. So ion carbon diagrams, right? This diagram is very much important for particular mechanical engineering as well as the material science engineering students. Diagrams, you have aware about how you may just predict that, as we have discussed in that phase diagram, how we can predict the properties change because of the change in the microstructure, right, of particular iron carbon alloys, we can say that. So basically in the general we can say that the alloy of the iron and carbon, okay, is nothing but it is the you can say that it is the steel, okay, and the steel we can define that if we just add the carbon percentage into the iron, right, in the range of that the 0.025 to maximum 2% according to the theoretical propositions. But practically it can be maximum, right, happen, it can be a maximum happen up to the only the percentage 1.7. हमने क्लासिफिकेशंस में आई थिंक वी हैव डिस्कस, हमने डिस्कस किया था ना क्लासिफिकेशंस में. आई थिंक somebody is knowing, anybody is knowing that? Hello, anybody is knowing that what was the reasons behind that? Hello, 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 am I audible to all? Yes sir. Okay, so anybody just give me data that how what is the reasons that we can add the maximum 1.4% carbon into the steels. उसके आगे क्या होता है कि हम वैसा स्टील नहीं बना सकते कि जिसके अंदर 1.8% कार्बन हो. आई थिंक आई वाज डिस्कस विथ यू, पहले मैंने बताया था आपको. मैंने आपको पहले बताया था. हेलो, हेलो, कोई किसी को नहीं मालूम है भाई? हेलो. तो जनरली क्या होता है कि ग्रेफिटाइजेशन हो जाता है. चलो मैं बता देता हूँ. और तो अगर इफ यू जस्ट क्रॉस द लिमिट देन द ग्रेफिटाइजेशंस विल बी देयर. ओके, ग्रेफिटाइजेशन मतलब कार्बन पर उसके अंदर ऐड करते हैं, उसका ग्रेफाइट फॉर्म हो जाता है. ओके ओके,
Just 1 minute. I just open that my PPTs. I just explain to you, right? Just bear with me. Then I will explain you again. Okay, now I just share my screens to you, so you will able to see the PPTs. Okay, fine. Okay, now are you able to see my screen, friends? Are you able to visualize the particular slides over here? Hello. Yes, sir. Okay, fine. So generally क्या होता है, if we just increase that particular carbon percentage into the iron carbide alloys, or we can say that it is the steel. तो स्टील के अंदर हम जैसे ऐड करते हैं, जो कार्बन जो है वो ग्रेफिटाइज हो जाता है, राइट, अबव द 1.4% लिमिट. Our steel will becomes the brittle material, and that is called the adverse effect, because brittleization हो जाता है. So because of that particular reasons, the strength is also poor, or we can say the ductility is also poor, right? तो जो कार्बन जो स्टील है, इट्स ट्रांजिट टू द कास्ट आयरन की तरफ वो आगे बढ़ जाता है. तो इसलिए प्रैक्टिकली जो है, इट इज पॉसिबल टू ऐड द मैक्सिमम 1.4% कार्बन इनटू द स्टील्स, राइट. बट थियोरेटिकली अभी हमारे ये जो डायग्राम्स हम देखते हैं, तो डायग्राम के अंदर अगर आप देखने जाएंगे तो इन दैट दे विल आइडेंटिफाइंग दैट अप टू द 2% of the carbon you can be a predict as the carbon steels. Is it clear, friends? समझ में आया गया? Hello. Yes, sir. Okay, very good, excellent. Now let's see that what is the importance of the iron carbon diagram. Iron carbon diagram का importance क्या है, friends? So to study of this iron carbon systems or diagram is useful for that many reasons are there. So the first one is that the steel constitutes the greatest amount of the metallic materials, as you know it. And the second is that the solid state transformation occurs in the steels are particular varied due to the change in the temperature and chemical compositions. Means we can predict the what are the transformation, उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होने वाला है. What are the next microstructures will be changed during some process, during some heat treatments, okay, with the change in the temperature and change in the chemical composition. Okay, so temperature and chemical compositions are the two variables. Based on this chemical compositions, मतलब कार्बन जो है, it is one kind of the chemical compositions, and the temperature, ये दोनों में अगर कुछ change होता है, because of this change, what are the transformations is occur in that particular steel, वो हम ये डायग्राम के ऊपर इफेक्ट कर सकते हैं. सेकंड थिंग जो है वो प्रॉपर्टीज यू कैन आल्सो प्रिडिक्ट, बिकॉज देयर आर द सर्टेन फेजेस अवेलेबल इन अ पर्टिकुलर दिस आयन कार्बन फेज डायग्राम. तो हमने जो फेज डायग्राम का चैप्टर्स हमने देखा, उसके अंदर हमने ये बात डिस्कस किया था, बट फिर भी हमने यहाँ पे रिवीजन किया दिया. So this phase diagram is helpful to explain or predict the microstructures and the properties. This is the one single line, right, is explaining the importance of this iron carbon diagram. Friends, अगर fabrication industries के अंदर जाएंगे आप, तो as we have discussed in that very first lecture of this subject, that the steel is that very common materials which are using in our atmospheres or in our routine lives.
So that is why this is the single steel material is processed in the different industries at the different level. Okay, so we are more concerned with this particular steel materials, right? So that most of the fabricators, those are processing or those are using this particular steel to fabricate the different components or different products. They must know how to change the behavior of this particular material at the different temperatures with the different composition of the carbon. Carbon change hota hai, then our steel is classified according to that the plain carbon steel जो है उसके अंदर मतलब बात करें तो लो एलॉय स्टील्स एंड हाई एलॉय स्टील्स. सेकंड थिंग बात करते हैं कि उसके अंदर अगर लो एलॉय स्टील्स के अंदर है तो लो कार्बन स्टील्स, मीडियम कार्बन स्टील्स as well as the high carbon steel, it is classified according to the percentage of the carbon. Okay, so हमारा जो यहाँ पे कार्बन जो है that is the main criteria of our steels. Okay, so here if we just see that what is the FEC diagram, इसके अंदर क्या है? So very first thing is that in iron carbon phase diagram, right, is not a complete diagram. एक बात ध्यान में रखो, it is not a complete diagram. Okay, and that is the part of the diagram is there. एक particular जो है एक particular part में बनाया गया है ये diagram. So the part of this diagrams after the 6.67 weight percentage carbon is ignored. यहाँ पे जो है ना कार्बन परसेंटेज मैक्सिमम कितना लिया है हमने 6.67 weight percentage लिया है. The reason is beyond that limit the carbon is from the graphite. Okay, graphitization हो जाता है. So it is not a part of the steel. Okay, it is the part of the non-metallic material, that is the graphite. So we can't use this graphite in our industries. So that is why we have ignored this diagrams after the 6.67 weight percentage of the carbon. Okay, because commercial significance नहीं है इसका. Fine. Now the 6.67% जो carbon है, it represents what? So it's the nothing but it is the compositions where an intermetallic compounds that is called cementite बनाता है. Intermetallic compound क्यों किया है इसको? Why we have just called cementite as the intermetallic compounds? The reason is because the carbon is the non-metallic materials. Then FeC मतलब Fe जो है that is the metallic component, that is the iron. So iron is react with the carbon and it will be forms some intermetallic compound. मतलब जो नॉन मेटल एंड मेटल दोनों के साथ रिएक्ट करके दोनों के बीच का एक मटेरियल बना है, that is called the compound. Okay, so and this Fe3C is known as the cementite. Okay, and जो cementite जो है, cementite के अंदर आप बात करेंगे तो मैक्सिमम जो है वो 6.67 weight percentage कार्बन होता है मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं हो सकता. So this is the limitation of solubility of a carbon into the ferrite to form the cementite phase. In addition of this phase diagram is not a true equilibrium diagram because the cementite is not an equilibrium phase. Okay, generally आप नाम में देखेंगे suppose so they are just giving them heading to this diagram, that is the iron carbide equilibrium diagram. Okay, generally यहाँ पे आपको there are the various names they are used for this iron carbon diagram. तो उसका नाम जो है वो पहला नाम है iron carbon diagram, सेकंड जो है वो iron carbide diagram. Okay, एंड जो थर्ड जो है मतलब iron carbide equilibrium diagram, जो पीछे मतलब equilibrium वो वर्ड लिख देते हैं. बट अगर देखने के लिए जाएंगे तो दिस आयरन कार्बाइड डायग्राम इट इज नॉट एन इक्विलिब्रियम डायग्राम. द रीजन इज बिकॉज द सीमेंटाइट इज नॉट ए इक्विलिब्रियम फेज. ओके, इट इज नॉट अ लास्ट प्रोडक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर फेज. उसके बाद भी कुछ चेंज होता है, दैट वी विल डिस्कस इन दैट सब्सिक्वेंट टॉपिक्स और द स्लाइड्स.
However, in ordinary steels, it is decomposed of the cementite into the graphite. Never observed. We have never observed that decomposition of the cementite. हमने cementite का decomposition नहीं देखा है graphite के अंदर होते हुए. Okay, so because why we have not observed? Because the nucleation of the cementite is much easier than that of the graphite. तो न्यूक्लिएशन जो हो रहा है ग्रेफाइट में और सीमेंटाइट के अंदर, तो जो सीमेंटाइट का जो न्यूक्लिएशन हो रहा है इट इज वेरी मच इजियर. So that is why cementite can be treated as an equilibrium phase for the practical purpose. हमने जो दिमाग के अंदर हमने जो बिठाया है कि भाई हमें ये जो ग्रेफाइट जो है उसका न्यूक्लिएशन जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट है, इसीलिए हमने जो सीमेंटाइट जो है इट इज डिकम्पोज इनटू द ग्रेफाइट ओनली. बट फॉर द प्रैक्टिकल पर्पस, फॉर द we have considered that graphite into the cementite only. Okay, understood friends? समझ में आ गया है आपको? Hello. Now very much important things we have to we are just going to be discussed, that is the iron carbide diagram. Hello, are you with me friends? Yes, sir. Okay. Now I would like to request all of you that please draw this diagram very carefully. आप ये diagram अभी आपकी notebook के अंदर draw कीजिए, because it is very much important, right? How to draw the diagrams, right? मैं आपको समझाता हूँ, आप मेरे साथ में ही आप draw करिए. So all are requested to just open your notebooks and the pen. I'm just going to be how to draw this diagram, right, on the whiteboard. So please keep it your notebooks and pen. Because उसके अंदर भी एक ट्रिक चाहिए आपको कि कैसे ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं. And you have to be practice 5 to 10 times. Because in your exams purpose this diagram is also very much important, because based on these diagrams you will get at least 7 marks weightage. एक particular questions तो आएगा ही आएगा based on this diagram. Like you have to draw this iron carbon diagrams, you have to just explain the various phase are present into this iron carbon diagram. Okay, then you have to be explained that invariant reactions, right, possessed in this particular diagram. तो मैं आपको ये व्हाइट बोर्ड के अंदर समझाता हूँ कि कैसे मतलब ड्रॉ कर सकते हैं. How you have to understood and how you can just draw this diagram carefully. This Microsoft boards is taking times. Okay, तो what we are doing first, हम पहले मतलब initially start करते हैं. Are you able to see my screen friends? स्क्रीन दिखाई देती है ना आपको? Yes. Okay, fine. Yes, तो सबसे पहले क्या करना है मैं आपको वो समझा देता हूँ. You should be aware with that how much percentage of carbon. Okay, कार्बन जो है वो कितने परसेंटेज यहाँ पे मतलब कौन से परसेंटेज पे एक पर्टिकुलर पॉइंट्स आते हैं वो हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ पहले. तो आपको दिमाग के अंदर वो ही फिट कर देना है कि कितने कार्बन परसेंटेज के पॉइंट यहाँ पे इम्पोर्टेंट है. तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि वेरी स्टार्टिंग से बात करते हैं यहाँ पे. तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो देख रहा है आप 0 से लेके 0.025 आप देख रहे हैं यहाँ पे. हेलो फ्रेंड्स, तो जो फर्स्ट पॉइंट जो है वो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल की बात कर रहा हूँ मैं.
आई थिंक आपको ये प्रिंट स्क्रीन कंट्रोल सी, कॉपी, देन yes. Okay. Okay, fine. ओके तो ये पर्टिकुलर में आयन कार्बन डायग्राम की बात कर रहा हूं आपको। तो जनरली आप देखेंगे कि ये जो डायग्राम है उसके अंदर यहां से आप मेरे साथ लिखते जाएंगे तो दैट विल बी बेटर। ओके, ये जो पर्टिकुलर ये पॉइंट है वहां पे जो कार्बन परसेंटेज आने वाला है वो आने वाला है 0.0025 0.00 sorry 0.25। इज इट क्लियर? दिस इज द वन फर्स्ट पॉइंट की बात की है वो आपका यहाँ पे आने वाला है। नाउ सेकंड पॉइंट कौन सा होगा कार्बन परसेंटेज का, कोई बता सकता है? इसके बाद का दिस वन, दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट है वो कितना है? 0.025। आप मेरे साथ लिखते जाना, ये बहुत ही जरूरी है फ्रेंड्स। अगर आयन कार्बन डायग्राम को कैसे मतलब ड्रॉ करना है उसके लिए यू आर रिक्वायर्ड टू अंडरस्टूड दिस इज द कंपोजिशन फॉर दैट पर्टिकुलर कार्बन परसेंटेज। सेकंड जो चीज आएगा यहाँ पे जो बात कर रहे हैं हम, दिस इज द 0.16। ओके, 0.16। Are you able to understood friends? Yes. Okay, 0.16 मेरे साथ लिखते जाइए, then it is better। Zero 0.16% carbon। Then this one is 0.5, 0.55, 0.55। ओके, देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो 0.8, दिस वन इज द 0.8, 0.8। then this one is the 2%, this one is the 2%, then this one is the 4.2 अथवा तो 4.3। अब नियर बाय होने चाहिए, ज्यादा वेरिएशन नहीं होने चाहिए। 4.2 क्योंकि आप देखेंगे कि in the different diagram there will be certain variations will be there, you will be observed, but this is the standard। I'm just write down over here nearby that is the 4.2%। and the last one जो है आप देख सकते हैं, this one is the 6.67% कार्बन, 6.67% कार्बन। आप दिमाग के अंदर बिठा दीजिए, this one you will have the keep in your mind। okay, write down this। આમાં આપણે બારનું સાઈડ રાઈટ એંગલ કરવાનું, આમાં કીધું છે કે કેટલું રાઈટ એંગલ છે કેટલું બારની સાઈડ નહીં કરવાનું।
ओके, आपने आई थिंक लिख दिया होगा। Have you write down it? Hello? Hello? यस सर। Yes, sir. ओके, Yes, लिख दिया sir. भाई? लिख दिया आपने ये जो Yes, नंबर्स है? sir. हाँ, yes. ओके, इंक्रीजिंग sir. ऑर्डर। हाँ यस सर। वेरी गुड। नाउ मैं यहाँ से मिटा देता हूँ अभी। आई एम जस्ट रिमूविंग दिस डेटा। नाउ ये हमने अभी जो डिस्कशन किया, ओके, किसके बारे में किया हमने यहाँ पे? वी हैव डिस्कस अबाउट द कार्बन परसेंटेज के बारे में हमने डिस्कशन किया। नाउ वी जस्ट थिंक अबाउट दैट द टेम्परेचर, कितने टेम्परेचर के ऊपर स्टेप्स आने वाले हैं और टेम्परेचर के ऊपर कुछ रिएक्शंस होंगे, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होंगे, कुछ फेज चेंज होंगे, तो हम वो बात करेंगे। तो नाउ नेक्स्ट वी विल गो फॉर द टेम्परेचर। तो फर्स्ट जो टेम्परेचर है वो हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, दिस इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। सेकंड जो टेम्परेचर आएगा, दिस वन इज दैट 723 डिग्री सेंटीग्रेड। थर्ड जो टेम्परेचर आएगा, दिस इज कॉल्ड द 910 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे 910 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद ऊपर हम जाएंगे तो ये जो टेम्परेचर लिमिट होगा, दिस वन, ये लाइन, ये जो लाइन है वो हमारा आएगा 1147, या कोई लोग मतलब जो है 1130 भी लिख सकते हैं यहाँ पे, बिकॉज बहुत सारे बुक्स के अंदर और बहुत सारे डायग्राम में 1130 डिग्री सेंटीग्रेड आया है। इज इट क्लियर फ्रेंड, समझ में आया है? हियर जो है दिस वन इज द 1390 लिख सकते हैं या 1400 आप ले सकते हैं, दोनों में वेरियस बुक्स हैविंग सम वेरिएशंस इनटू दैट। इज इट क्लियर, समझ में आ गया? नाउ ये जो लाइन की बात करें, दिस लाइन यहाँ पे आता है 1490 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद आएगा दिस वन, ये पॉइंट की बात करता हूं मैं, दिस वन, ये जो पॉइंट है, इज इट क्लियर फ्रेंड्स? हेलो? Yes, sir. Okay, okay, very good. So you just write down these steps: 1, 2, 3, 4, 6 and 7. 6 and 7 आपको ऐसे कैसे आगे बढ़ना है आयन कार्बन डायग्राम के, ये मतलब आपके दिमाग के अंदर इतना जो चीज है, दिस वन, ये जो पॉइंट मैं आगे बोले थे एंड अभी जो बोल रहा हूँ पॉइंट, ये जो पॉइंट है आप आपके दिमाग के अंदर बिठा लीजिए। Okay, I think you did this one. I hope कि आपने लिखा होगा। Now we just move toward the next. वापस मतलब ले लेता हूँ this points. Have you completed friends? आपने कर दिया? Yes. Okay. यस सर। Now you should keep that in your mind. What is the shape of the ion carbon diagram? ये आयन कार्बन डायग्राम का शेप कैसे है वो आपके दिमाग के अंदर फिट कर देना है। मैं आपको यहाँ पे साइड में मैं आपको लेके जाता हूँ कि कैसे मतलब इसका शेप है, राइट? इसको मैं मतलब थोड़ा मिनिमाइज करके यहाँ पे मतलब ड्रॉ करूंगा ताकि आपको दिमाग में कैसे फिट करते हैं वो समझ में आए। तो आप देखेंगे कि मैं जो वर्टिकल लाइन एक्सिस जो है वो टेम्परेचर वाली है एंड नीचे जो है आई जस्ट पुट द x axis and y axis. So on that x axis I will have the percentage carbon and on the y axis I will have the
टेम्परेचर इन द सेंटीग्रेड। आप दो तरीके से ले सकते हैं, फ़ारेनहीट एंड डिग्री सेंटीग्रेड में। आपको फ़ारेनहीट लेना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं उनका कोरिलेशन में कितने मतलब यहाँ पे पॉइंट आ सकते हैं, राइट। एंड डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो दोनों स्केल पे है। यू डोंट नीड टू मेंशन बोथ। आपको दोनों चीज बताने की जरूरत नहीं है। आपको जो भी स्केल बताते हैं वो कोई भी एक स्केल में यूज कर सकते हैं, अगर स्पेसिफिक उन्होंने पूछा नहीं है तो। अगर they are asking you that you have to show both scale, Fahrenheit as well as the centigrade, then you are required to show both scale over there. तो हमने यहाँ पे बात किया था फ्रेंड्स कि पहले जो है that is the very first order। आपको जो टेम्परेचर हमने जो रिमाइंड किए थे, दिमाग के अंदर आपको बताया था कि व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स फॉर द टेम्परेचर, वो आपको पहले यहाँ पे आइडेंटिफाई कर देने। तो हमने यहाँ पे 0 लिखा था, देन दूसरा लाइन आपको बनाना है दैट इज कॉल्ड द 723 डिग्री सेंटीग्रेड, जैसे आपने हमने आगे डिस्कस किया 723। उसके आगे है 910 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 910 का एवरीथिंग शुड बी लाइट, ये जो है वो लाइट लाइन होनी चाहिए ताकि आपको बीच में कंफ्यूजन न हो। 910। उसके बाद आया था 1130 और 1147। सो यू जस्ट मेंशन द 1130 और 1147। देन यहाँ पे आया था 1390, ओके, और 1400। बट मैंने जो मतलब मेरे दिमाग के अंदर है, आई जस्ट पुट इन माय वे, दैट इज द 1390 डिग्री। देन उसके बाद उसके ऊपर जो था दैट वाज द 1490 था। देन उसके ऊपर था दैट इज द 1539। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? समझ में आ गया ये चीज आपको? आपको कुछ नहीं करना है, यू जस्ट मेंशंस लाइक दिस। ओके, आर यू एबल टू विजुअलाइज फ्रेंड्स? आपको दिखाई देता है ना? Yes, sir. Yes. ओके फाइन। तो फर्स्ट जो है स्टेप्स आपको ये दिमाग के अंदर बैठाना है कि हाउ टू मेंशन दिस टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द स्केल। स्केल होना चाहिए कि भाई 723 डिग्री है तो ये इतना मतलब आपको एक पर्टिकुलर स्केल के अंदर ड्रॉ करना है। अगर ग्राफ पेपर लेंगे दैट इज वेल एंड गुड, राइट। आपके एग्जाम के अंदर भी ग्राफ पेपर दिया होता है पर्टिकुलर आंसर बुक के अंदर, तो उसका यूज कर दीजिए, दैट इज वेल एंड गुड, राइट। इजी रहेगा आपको ड्रॉ करने के लिए। उसके बाद है आगे की बात करें हम कि नेक्स्ट इज द टेम्परेचर हो गया। अभी कंपोजिशंस की बात करेंगे। तो कंपोजिशंस जो हमने बात किया था, तो वेरी फर्स्ट पॉइंट कहाँ पे है? हियर, दैट इज द पॉइंट 0.025। उसके बाद हमारा जो मतलब सेकंड था वो एक पर्टिकुलर शेप हमें डिफाइन कर लेना है। तो जो दूसरा पॉइंट है वो कहाँ पे था? यहाँ पे था, दैट इज कॉल्ड द पॉइंट 0.25। तो हमें मालूम है कि हमारा जो शेप था वो ऐसे शेप बनता था। यू जस्ट सी दिस। सेकंड थिंग जो 910 था वहां से 0.8, दैट इज द सेकंड पॉइंट जो था हमारा नीचे वाला यहाँ पे था। तो ये जो 0.8 यहाँ पे था, तो हमने 0.8% यहाँ पे मतलब लाइन हमने बनाया था, तो यहाँ पे आप 0.8 कर दीजिए। देन ये जो है वो 2% कहाँ पे इंटरेक्ट होता था, तो वो 1130 के ऊपर होता था 2%। आप देख सकते हैं, दिस इज द 2, दिस इज द 0.8, राइट, दिस इज द 0.0025. Then as we know that this one is the 0.025. ओके, ये आपको ऐसे दिमाग के अंदर फिट करना है। फिर यहाँ पे जो था, ये जो शेप बनता था यहाँ पे, दिस वन वाज लाइक दिस। तो ये जो पॉइंट था ये हमने आई थिंक मेंशन करना रह गया है। दिस इज नथिंग बट इट इज द 0.09%। देन उसके आगे था 0.16 था, एज आई थिंक यू नो दैट। तो 0.16 जो है वो हमने ऐसे शेप बनाया। तो ये जो है ये शेप आपको दिमाग के आना चाहिए कि ये जो 0.16 है, यहाँ से 0.16 एंड फिर यहाँ पे वापस आ जाना है। ओके, उसके बाद हमने ये जो टेम्परेचर था वो टेम्परेचर के ऊपर अगेन थोड़ा मतलब आगे बढ़ना था। ये जो है वो टेम्परेचर पे हमें आगे बढ़ना था। देन द नेक्स्ट आपका था वो 0.5 था यहाँ पे,
सपोज आपको याद है तो हमने 0.5 यहाँ पे लिया है, देन 0.5 पे ये कनेक्शन किया है, देन यहाँ पे 4.3% एक बाकी रह गया, तो ये जो 2 एंड 4.3%, ये जो पॉइंट है हमारा 4.3% है। तो यहाँ से डायरेक्टली कुछ नहीं करना है, यू जस्ट एक्सटेंड अप टू डायरेक्टली यहाँ पे, देन लास्ट जो है दिस इज द 4.82% आ गया, देन लास्ट में जो पॉइंट था हमारा दैट इज द 6.67% यहाँ पे, तो दिस इज द 6.67% हमारा कार्बन है। ओके तो यहाँ पे जो आप बात करेंगे, यू जस्ट एक्सटेंड अप टू दिस, राइट। ये जो टेम्परेचर है वो 1419 के अप्रोक्सीमेटली रेंज में होना चाहिए, ये जो है वो दिस पॉइंट। ओके तो हमने हमारा जो आयन कार्बन डायग्राम है यहाँ पे मतलब कंप्लीट हो गया। अभी इसका फेज कैसे बताते हैं वो मैं आपको इतना समझ लो पहले, आप यू जस्ट ट्राई टू ड्रॉ दिस वन थिंग ओनली। समझ में आ गया फ्रेंड्स आपको कैसे आयन कार्बन डायग्राम का फेज जो है, सॉरी शेप्स कैसे हमने डिफाइन किया है, कैसे उसको याद रखना है। आर यू एबल टू सी दैट? हेलो, यस सर। यस सर। विल यू हैव एनी क्वेरी? इसके अंदर कोई क्वेरी रहेगा? नो। नो सर। Okay, so you are informed that you just please draw right now, right from this। मैंने जो ये steps आपको बताया है वैसे steps के अंदर अभी मतलब आप draw कीजिए, then it will be better for you। तो ये जो है वो 0.55, this one is 0.16, this one is the 2%, this one is the 4.2%, right? This one is the 6.6. You just complete this one friends, okay? Because एग्जाम के अंदर एक कंपलसरी आने वाला ही है, okay? This is very much important for that material science and metallurgy as well as mechanical engineering student। अगर ये चीज नहीं आता है means you will be in a trouble when you work in a fabrication industries or materials related subjects। I think you are able to see the screen। स्क्रीन दिखती होगी आपको।
અને બંને અલગ અલગ પેસો ભેગા. Sorry, are you able to see my screen, friends? Hello? Yes. Okay. If you just finish your work, then just inform me, because I'm just waiting that you are finished this thing. दोनों के दोनों गिनने के अंदर के और बाहर के.
बेटा अलग अलग बेस में है. Friends, have you completed this? Hello? 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 यस सर. भाई पूરું થયું કે નહીં? हाँ सर चाहिए. Anybody has just remaining that work? Hello? કોઈને બાકી છે ભાઈ? नो सर थैंक यू. Okay, तो just inform me यार. જેવું પતે છે, you just inform me so I can just continue this same thing. Okay, anyway. Let's move toward that. What are the different phases available in this ion carbon diagram? So we have to identifying the regions, right? जो हमारा यहाँ पे हमने अलग अलग जैसे कि रीजन बनाया है, तो उसके अंदर हमें आइडेंटिफाइड करना है. Here the 0% कार्बन मीन्स ये जो डायग्राम है उसका नाम है आयन कार्बन डायग्राम. It means it's giving that idea for the solid solution of the iron and carbon. So if the 0% carbon, it means that there is the 100% iron. Is it clear? उसका मीनिंग है कि अगर 0% कार्बन है, उसका मीनिंग है there is the 100% iron is present. तो अगर हम बात करते कि वेरी फर्स्ट थिंग यहाँ पे जो है हमारा सेशन जो है, ये जो दिस वन इज द एरिया, ये जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया. आर यू एबल टू विजुअलाइज दिस एरिया? हेलो सर. ये जो एरिया है आपको हाईलाइट दिखता है, दिस वन इज ऑरेंज जोन. सो दिस एरिया इज नथिंग, हमारा जो पहले वाला दिस वन, ये जो एरिया है वहां पे हमारा अल्फा फेराइट है, 100% फेराइट है, एंड इट इज डिनोटेड बाय द अल्फा फेराइट. ओके, देन सेकंड चीज फेज की बात कर रहा हूं मैं. सेकंड फेज है यहाँ पे, सेकंड फेज जो है ये जो पोर्शन, ये जो मैं अभी बाउंड्री जो ड्रॉ कर रहा हूँ, ये बाउंड्री के अंदर ये जो एरिया है, ये एरिया के अंदर हम जो फेज मेंशंस करने वाला है, ये फेज है यहाँ पे, ये कलर जो है ब्लू कलर, ये जोन के अंदर कौन सा फेज होगा? ऑस्टेनाइट. दिस इज कॉल्ड द गामा आयन. दिस इज कॉल्ड द गामा आयन और ऑस्टेनाइट. यू कैन से दैट दिस द ऑस्टेनाइट. समझाई से भाई? आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? Yes, sir. हेलो, दिस द ऑस्टेनाइट. ऑस्टेनाइट. सेकंड जो है नेक्स्ट में जो ये जो जोन है, दिस वन ग्रीन जोन में ड्रॉ कर दिया यहाँ पे. तो ये जो ग्रीन जोन है, ये ग्रीन जोन में जो फेज है, दिस इज नथिंग बट इट इज द डेल्टा फेराइट. दिस कॉल्ड द डेल्टा फेराइट. तो हमने जो पहले जो बताया, जो मैंने जो सेक्शन यहाँ पे दिखाया है, वो जो लाइन है हमारा जो 0% का लाइन है, वहां पे जो 3 है, इसका मीनिंग है 0% लाइन के ऊपर 0 से लेके 910 डिग्री तक जो फेज मिलता है हमें, वो हमें मिलता है अल्फा फेराइट. देन 910 से लेके 1390 जो है और 1400 तक जो मिलता है हमें फेज, वो हमें मिलता है ऑस्टेनाइट. एंड 1390 से अबव लास्ट तक हम बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड द 1539 तक हमें जो मिलता है वो हमारा फेज है, दैट इज कॉल्ड द डेल्टा फेराइट. इट मींस आयन 100% आयन जो है, इट्स हैविंग द बिहेवियर while it will change its phase और change its crystal structure. ये जो अल्फा फेराइट है उसका बीसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर है,
ऑस्टेनाइट जो है उसका एफसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, अगेन जो डेल्टा फेराइट मिला उसका बीसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर है. So the behavior of the material, right, which change its crystal structure at the different temperature, right, which behave at the different different temperature with a different crystal structure. तो ऐसा behavior जो है that is called the allotropic, that is called the allotropy of, उसको बोलते हैं polymorphism. It means it will have the different phase at the different temperature, इसलिए बोलते हैं कि polymorphism, right, उसका जो phase है वो polyphase है at the different temperature, इसलिए उसको polymorphism बोलते हैं ये behavior को. Okay, and अगर ऐसा material जो है, there are the different materials are having this kind of the characteristics, like a nickel also this kind of the characteristics, titanium is also this kind of the characteristic. तो ऐसे जो materials जो है, that materials are also known as the allotropic material, that materials are also known as the allotropic material. समझ में आया फ्रेंड्स? ओके, अब हम बात करते हैं कि आगे की बात करते हैं. तो अब हम देखते हैं कि एट दिस पर्टिकुलर द सिंगल लाइन, हम ये जो लाइन की बात करता हूं मैं, ये जो 0.8 की जो लाइन है, ये लाइन के ऊपर, तो ये जो पर्टिकुलर लाइन है, ये पर्टिकुलर लाइन के ऊपर जो फेज है, दिस इज नोन एज द परलाइट, दिस इज नोन एज द परलाइट. हेलो, आर यू एबल टू सी द स्क्रीन एज वेल एज आर यू एबल टू लिसन मी फ्रेंड्स? सुनाई दे रहा है मेरी आवाज? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो ये पर्टिकुलर लाइन जो है बिलो 723 एज वेल एज ए 0.8% की लाइन है, वहां पे परलाइट है. ओके, अब हमें इजी हो जाएगा कि ये बिटवीन दिस टू रेंज, राइट, ये दोनों के बीच में जो हमारा यहाँ पे रीजन जो बनता है, रीजन इज लाइक दिस, ये जो हमारा रीजन बनता है, ये जो हमारा रीजन बनता है, ये वाला, मतलब अल्फा फेराइट एंड परलाइट के बीच में, तो यहाँ पे कौन सा फेज हो सकता है? एनीबॉडी जस्ट प्रिडिक्ट व्हाट विल बी द फेज इन दिस रीजन? ये रीजन में कौन सा फेज होगा? ये एंड ए दोनों के बीच में, मतलब तो कौन सा फेज हो सकता है? हेलो हेलो, यू आर नॉट इंटरेक्टिव फ्रेंड्स. एक मैं सिंपली आपको एक बताना चाहता है कि यू आर नॉट इंटरेक्टिव विथ मी. You just give me some answer, friends. Whenever I just explain you in this manner, if you are not understanding, you just tell me that कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है, क्या कहाँ पे दिक्कत है. Then I can understand कि भाई बच्चों को यहाँ पे प्रॉब्लम है. Then I can again explain you. Whatever I'm just asking you, that you just respond me, because this is the online learning. I'm not able to visualize your face. ये जो पर्टिकुलर रीजन है, येलो कलर से मैंने दिखाया है, ये रीजन के अंदर कौन सा फेज होगा? अगर ये जो है सपोज अल्फा एफई है एंड यहाँ पे परलाइट है, तो ये दोनों के बीच में कौन सा हो सकता है? परलाइट फेराइट. अल्फा एफ प्लस परलाइट. एग्जैक्टली, अल्फा फेराइट प्लस परलाइट. ओके, वैसे सपोज हमें मालूम है कि ये जो 6.67 जो परसेंटेज है, 6.67% के ऊपर यहाँ पे जो ये लाइन है, वहां पे 100% सीमेंटाइट है. क्या है? 100% सीमेंटाइट है. ये जो पर्टिकुलर लाइन है, यहाँ पे 100% सीमेंटाइट है. तो ये लाइन एंड परलाइट वाली बीच में क्या होगा? ये दोनों के बीच में कौन सा फेज होगा? ये लाइन के अंदर, दिस वन, ये जोन जो है हमारा, दिस वन, ये जोन के अंदर कौन सा फेज होगा? हेलो, परलाइट प्लस सीमेंटाइट. परलाइट प्लस सीमेंटाइट होगा. वेरी गुड. नाउ ये जो जोन है यहाँ पे, सपोज दिस वन, राइट. अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि ये जो पूरा है यहाँ पे, दिस वन जोन इज हैविंग द लिक्विड, ये जो लिक्विड मेटल है, तो फिर लिक्विड एंड ऑस्टेनाइट के बीच में कौन सा फेज होगा?
लिक्विड एंड ऑस्टेनाइट के बीच में कौन सा फेज होगा? लिक्विड प्लस ऑस्टेनाइट। एग्जैक्टली। अभी जो है लिक्विड एंड सीमेंट के बीच में कौन सा फेज होगा? हेलो, यहाँ पे सीमेंटाइट है, यहाँ पे ऑस्टेनाइट, यहाँ पे रीजन के अंदर पूरा सर आज कट रहा है सर। ऑस्टेन हेलो, ये जो ऑस्टेनाइट एंड ये जो है लाइन सीमेंटाइट, वो दोनों के बीच में कौन सा फेज होगा? ऑस्टेनाइट प्लस सीमेंटाइट। इज इट क्लियर? यस सर। ओके ओके फाइन। नाउ अगर ये जो ऑस्टेनाइट है एंड ये जो डेल्टा फेराइट है, तो ये दोनों जो ये बीच में जो छोटा सा रीजन बना है, वो वहां पे कौन सा फेज होगा? यहाँ पे डेल्टा प्लस गामा। देन ये जो पर्टिकुलर जोन है, ये वाला जोन, दिस वन, यहाँ पे कौन सा फेज होगा? हेलो, ये जोन जो है कौन सा होगा ये जोन में? ये साइड डेल्टा है, ये साइड लिक्विड है, तो दोनों के बीच में डेल्टा एंड लिक्विड होगा यार। ओके, देन वही चीज यहाँ पे ऑस्टेनाइट है, यहाँ पे फेराइट है, तो ये जो जोन है छोटा सा, वहां पे कौन सा होगा? अल्फा फेराइट प्लस ऑस्टेनाइट होगा। ओके, so friends, this is about the different phases available in iron carbon diagram. तो यहाँ तक रखते हैं. Next we will just see the different reactions is occur in a iron carbon diagram. If you have any query, you may ask me. And आपने जो interaction नहीं किए हैं, I'm request all of you that please interact with me. If you have any doubts, you just ask me. Then and then I will understand, and then I will able to teach you very well. Okay? अगर इंटरेक्टिव नहीं रहेंगे देन मुझे भी पढ़ाना मतलब आपको मजा नहीं आएगा. एंड योर सेशन इज रिकॉर्डेड, ये रिकॉर्डिंग हो रहा है आपका सेशन. तो आप अगर इंटरेक्टिव नहीं रहेंगे, आप क्वेश्चन आंसर नहीं करेंगे, देन योर परफॉर्मेंस इज आल्सो रिकॉर्डेड एट द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात पोर्टल. Right? I'm just giving my 100%. You also just giving your at least 60% or 40%. अगर नहीं है तो 0% मीन्स बाय द इंटरेक्शन. ओके, थैंक यू. यहाँ तक हम रखते हैं. यू मे लीव, नो प्रॉब्लम.